Good morning everyone. Today we will discuss about dielectric constant. देखिए हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस किया था, जिसको हमने डिनोट किया था कैपिटल के से, एंड दैट कैपिटल के वाज इक्वल टू, किसके इक्वल था? इट वाज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges placed in air to that of in some medium. Clear? This was the formula for dielectric constant in terms of electrostatic force. ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की. उसमें पोलराइजेशन हमने देखी. जब हमने डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, then what happened? The polarization of dielectric takes place. Clear? तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन हुई, हमारे पास उसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ. This was the electric field which is applied outside the dielectric. ठीक है, E नॉट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था डाइलेक्ट्रिक के बाहर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसे हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था, एंड दैट वाज नेम्ड एज अ ईपी. क्लियर? जिस वजह से दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा था, वो बचा था फिर E आउटसाइड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस कैपिटल E इज कॉल्ड एज, देखिए, दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ दिस E नॉट माइनस EP, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है, that is equal to the reduced value of this E naught. So in terms of this dielectric, we can define this dielectric constant as the ratio of external electric field to its reduced value, means E naught divided by E, that is called as dielectric constant. Clear? E naught क्या है? Applied external electric field, and E is its reduced value. जिसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज हो गई है. क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. मींस वी कैन राइट इट दैट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सो वी कैन से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कि हमने यहां पर E नॉट से डिनोट किया है, टू इट्स रिड्यूस्ड वैल्यू. मींस रिड्यूस्ड वैल्यू है हमारे पास E. तो दिस इज द रेशियो ऑफ E नॉट अपॉन E. क्लियर? देखिए, अब हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, K इज इक्वल्स टू the value of E naught is a sigma upon epsilon naught. Clear? Whereas this E can be written as, we have yesterday we have calculated the value of this capital E, and that was equals to what? इसके इक्वल आ गया था. So this was equals to, कल हमने किया था बेटा, that was equal to sigma minus sigma P upon epsilon naught, if you remember this. Clear? This was the value of this capital E. Capital E is equal to sigma minus sigma P upon epsilon naught. This we have discussed in case of polarization of dielectrics. Clear? So epsilon naught, here it is epsilon naught, they will cancel out, and finally we will get the value of K, that is equals to sigma divided by sigma minus sigma P, where sigma P is the induced charge density. Clear? So this is also the formula for dielectric constant. So in general we can say that K is equals to E naught upon E, and it is equals to sigma upon sigma minus sigma P. So this is the formula for dielectric constant
in terms of the electric field. Clear? अब देखिए ये जो E naught है, it is always greater than E. अगर E naught हमेशा E से greater है, then what happens? Then this K is greater than 1. इसका मतलब dielectric constant is always greater than 1. अब देखिए, this is the ratio of similar quantities. Electric field divided by electric field. Therefore, it is a pure number. So we can say dielectric constant is a pure number. This is a pure number. ठीक है? And its value is always greater than 1. So this was about the dielectric constant. Clear? इसी तरह से हम छोटी छोटी टर्म्स आज स्टडी करेंगे. Note it down. It clear? So next is that is called as, yesterday we have studied about polarizability. Today we are going to study about polarization vector. So there is a quantity which is named as polarization vector. Clear? So next is that is called as the polarization vector. The polarization vector. So देखिए, what is this polarization vector? Clear? It is the net dipole moment. ठीक है? Per unit volume of the dielectric. Clear? किसी dielectric के per unit volume की net dipole moment कितनी है? So we can say the net or total dipole moment. The net or total dipole moment per unit volume of a dielectric is called polarization vector. Is called polarization vector. ठीक है? जिस तरह से मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, उसी तरह से टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन वेक्टर. क्लियर? और वी कैन से दिस पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू टोटल डाइपोल मोमेंट divided by this is called as volume. This is the general formula for a polarization vector. ठीक है? अब mathematically how we can represent it, that we will discuss. ठीक है? देखिए कैसे हम इसको मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं. Now let us consider, हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक गिवन है. अब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है? एंड ईच एटम और मॉलिक्यूल they will have some value of electric dipole moment. ठीक है? तो हमने टू टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक्स पढ़े थे, एक पोलर था, एक नॉन पोलर. क्लियर? नॉन पोलर के केस में इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पैदा होती थी. तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम नॉन पोलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हर एक मॉलिक्यूल में क्या आई है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आई है. क्लियर? ठीक है? व्हेन दे आर प्लेस्ड इन some external electric field. पोलर में भी ऐसा ही होता था. पोलर के हर एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती थी, और जैसे ही उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे. क्लियर? जिस वजह से वहां पर भी नेट डाइपोल मोमेंट आ जाती थी. क्लियर? तो उसी तरह से हम मान लेते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है स्मॉल p. तो लेट small p is the dipole moment or electric dipole moment, you can say, of a single atom or molecule of the dielectric. किसी डाइलेक्ट्रिक का सिंगल एटम या मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है स्मॉल p. हम इसको चाहें तो we can write it in the form of vector because electric dipole moment is a vector quantity. ठीक है? अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का यूनिट वॉल्यूम है.
यूनिट वॉल्यूम मींस इट मे बी 1 मीटर क्यूब, इट मे बी 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है यूनिट वॉल्यूम। और उस यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं वो है स्मॉल n, ठीक है। तो मान लेते हैं इफ स्मॉल n बी द नंबर ऑफ एटम्स और यू कैन से मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, स्मॉल n। सिंगल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है कितनी, स्मॉल p वेक्टर। तो उन n मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, सिंगल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है स्मॉल p, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है स्मॉल n, किसके अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो उस यूनिट वॉल्यूम में टोटल डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, n मल्टीप्लाइड विद दिस सिंगल मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट। और वी कैन से देन द टोटल डाइपोल मोमेंट फॉर यूनिट वॉल्यूम इज कितनी हो जाएगी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड विद डाइपोल मोमेंट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। दिस कैपिटल P is called as a polarization vector, clear? So where P vector, capital P vector is polarization वेक्टर, इसको बोला गया बेटा पोलराइजेशन वेक्टर। देखिए n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट इज n into small p vector, small p is the dipole moment of single molecule, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास पोलराइजेशन वेक्टर। देखिए इसका हम मैग्नीट्यूड राइट करना चाहें तो मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन p is equal to n into p, this can be written like this। from here we can find out, देखिए पोलराइजेशन वेक्टर के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके यूनिट्स क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, दैट वी कैन फाइंड आउट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूनिट्स क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर, क्लियर। सो यूनिट्स आर देयर, units of this capital P vector, this is polarization vector, clear। vector इसलिए बोला गया because dipole moment is having some direction from negative to positive charge, ठीक है। तो ये भी वैसी ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, इट इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स आपको पता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू q into 2l, we have already studied, it is coulomb and here it is meter, so we can say it is coulomb meter divided by units of volume, that is meter cube। so we can say the units for p are equals to coulomb, हाँ जी कितना आ गया, here it is meter cube, so coulomb per meter square। so these are the units of polarization vector, clear। units again, now we will write the dimensional formula for this polarization vector। so the dimensional formula we have to write down। so dimensional formula of polarization vector, so that we can say that capital P is equals to, हाँ जी, dimensional formula of dipole moment divided by dimensional formula of volume, clear। dipole moment का dimensional formula you know very well, that is, हाँ जी, dipole moment हमारे पास होती है बेटा, देखिए this p is equal to q into 2l, we have already written this। तो चलिए फिर से अगेन कर लेते हैं। this q can be written as current into time and here it is the length। तो देखिए from here we can find out the dimensional formula of this small p, ठीक है। तो I के लिए हम लिखते हैं एम्पियर, टाइम के लिए t एंड लेंथ के लिए l। सो मींस इट इज
A1 T1 L1. Clear? That is the dimensional formula of dipole moment. And volume के लिए आपको पता है that is equals to what? That is meter cube. तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं then you will find out, देखिए मास नाम की चीज यहां पर नहीं आई, it is equals to, हाँ जी, m0. yes, find out this. दोनों का डायमेंशनल फार्मूला राइट कीजिए जल्दी से. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड देन फार्मूला फॉर वॉल्यूम. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए चार्ज के लिए एम्पियर इनटू टाइम आ गया, एल आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय m3 हो जाएगा. तो देखिए कितना, सॉरी l3 हो जाएगा वॉल्यूम क्यूब. तो कितना बन गया बेटा, L1 ऊपर भी है इधर भी है. फाइंड आउट इट. सो इट इज m0 l-2 and t1 a1. m0 l-2 t1 a1. This is the dimensional formula of a polarization vector. So we can write the dimensional formula like this. Clear? So ये था आपके पास about the polarization vector. तो इसको नोट कर लीजिए. Note now. Clear? Next is called as, that is called as susceptibility. This is a new term. Susceptibility. Now what is this susceptibility? तो यार susceptibility क्या है? देखिए हमने क्या किया बेटा, हमने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया. तो डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेसिस में अपोजिट चार्जेस आ गए. ठीक है, बोलने का मतलब पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस. डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन हुई. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो ससेप्टिबिलिटी है, इट इज द नेचुरल मेजर ऑफ द पोलराइजेबिलिटी. सो वी कैन से इट इज द नेचुरल मेजर ऑफ पोलराइजेबिलिटी. ठीक है, ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक. सो पोलराइजेबिलिटी है, इट इज द मेजर ऑफ द पोलराइजेबिलिटी. या एक और बात, इट इज आल्सो डिफाइंड एज दैट हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी इलेक्ट्रिफाइड. ठीक है, कि किसी मटेरियल को हम कितने आसानी से इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी. तो देखिए जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे थे, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, व्हाट हैपेंड, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस. इट मींस उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. अब वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड स्ट्रॉन्ग होगा, पोलराइजेशन भी उतनी ही लार्जर होनी है. क्लियर? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर है, दैट इज द dipole moment per unit vector. So we can say since the polarization vector depends, किसके ऊपर डिपेंड किया, on the applied electric field and permittivity of the medium depends upon applied electric field and permittivity. ठीक है, पोलराइजेबिलिटी में भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था. पोलराइजेबिलिटी वहां पर स्मॉल p थी, वहां सिंगल मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट की बात की जाती थी. अब की बार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसकी है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, एंड दैट इज हियर इट इज कैपिटल P and it is directly proportional to epsilon naught into some applied electric field that is E here. ठीक है, applied electric field वैसे तो हम E naught ले रहे हैं, E outside, so we can mention here E, no problem. Clear? So जितना strong electric field हम अप्लाई करेंगे, ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी उतनी ही लार्जर होगी. ये डाइपोल मोमेंट कौन है, पोलराइजेशन वेक्टर. दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. So from here we can say
this capital P vector is equals to some constant of proportionality. Be careful, very important thing. Here this symbol is written as like this, and this represent the susceptibility, and it is pronounced as xi, xi. ठीक है, xi, xi. Clear? So P vector is equal to xi E, means susceptibility of electric field into epsilon naught into this E vector. So this is the formula of this P vector in terms of epsilon naught E vector and susceptibility. So we can say here xi E क्या है, is the constant of proportionality, is constant of proportionality, and is called, इसको क्या बोलते हैं, electric susceptibility, and is called electric susceptibility. This is the electric susceptibility. ठीक है. So therefore this xi E, therefore xi E is equals to, from this formula we can write it, it is equals to, देखिए हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम वेक्टर साइन नहीं करेंगे, बिकॉज वेक्टर कांट बी डिवाइडेड विद वेक्टर, वेक्टर्स का डिवीजन नहीं होता है, तो इसलिए हम खाली मैग्नीट्यूड राइट कर रहे हैं. तो xi E is equals to कैपिटल P divided by epsilon naught into E. So this is the formula for electric susceptibility. ठीक है. अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इसके कोई यूनिट्स भी नहीं है, डायमेंशंस भी नहीं है. अगर आप प्रूव करना चाहें, यू कैन सब्स्टिट्यूट द यूनिट्स ऑफ कैपिटल P, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then you will find that it is a unitless and a dimensionless quantity. ठीक है. आप करना चाहें, पुट करना चाहें, कर सकते हैं. देखिए it is unitless and dimensionless quantity. ये unitless and dimensionless quantity है. कोई बोले प्रूव भी कर देते हैं, बिकॉज xi E के जो यूनिट्स हैं, देखिए कैपिटल P के यूनिट्स हो जाएंगे, इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अभी हमने कैपिटल P के यूनिट्स फाइंड आउट किए थे, दैट वाज कूलम पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी. यू नो वेरी वेल, दैट इज न्यूटन इनवर्स. न्यूटन इनवर्स, हाँ जी, दैट इज कूलम स्क्वायर एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर. दीज आर द दिस यूनिट्स ऑफ किसके यूनिट्स हैं, परमिटिविटी के, एप्सिलॉन नॉट. क्लियर, यही है ना. मल्टीप्लाइड विद यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E is equal to F upon Q, means न्यूटन पर कूलम. तो देख लीजिए, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर इट इज कूलम स्क्वायर, इट इज कूलम इनवर्स. तो बचा क्या, ओनली कूलम बचा, ये कूलम और वो कूलम कैंसिल. तो हियर इट इज m raised to power -2, यहां भी -2 है, इसको हम यहां ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा. इट मींस न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सारी की सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी. ठीक है. सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी, मींस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. क्लियर. अभी हमारे पास रिलेशन आएगा, ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है इसका और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पढ़ा उसके बीच में क्या रिलेशन है, दैट वी विल स्टडी टुमारो. कल पढ़ेंगे उसको. तो अभी यहां तक आपने पढ़ लेना है बिल्कुल अच्छे से. दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है. सो टिल नेक्स्ट लेक्चर यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, डू द रिवीजन इन ए वेरी वेल मैनर.